Bismillahirrahmanirrahim. Let's start with our second lecture, that is about diagonal scales. So, in previous class, we discussed what is engineering drawing, what are the type of drawings that are used in engineering drawing and graphics. Then we discussed different type of lines and their uses. In today's lecture, we will discuss first what is scales, I means reducing scale and enlarging scale, and then we will move toward diagonal scale. So scales are actually the instruments that are used to measure, that are used for measurement purpose. So today we will start with reducing scale. The first one is reducing, and the second one is enlarging scale. Reducing scales are actually that used for an objects that are drawn smaller than their actual size. Whenever you have given you can say whenever you have given any object to and you are asked to draw this, so the size that is given of that object is actual size. Now it depends on you whether you want to draw it based on its actual size, or you can reduce or enlarge the objects. So reducing scale is obviously that is used for any object that is drawn smaller than their actual size. After defining this, we will also draw the object by reducing scale. Enlarging scale. Enlarging scales are used when an object drawn larger than their actual size. Whenever you have any object and you want to draw it, you have to draw it larger from its actual size, then you use enlarging scale. So अगर आप देखें, so let's start. For example, if you have been given a circle, for example, a circle, and this is the center, and this is what? Center line, and the diameter of this circle is, for example, actual one is 20 mm. Okay, so you have the option either to draw it based on its actual size. This is actual size. Now you can draw it as per actual size 20 mm. You can draw it smaller or larger. So first we will talk about reducing scale. So reducing scale. So what will you do? You will select any scale for that. For example, you can the easiest one is that you can say that let's say 1:2. Clear? So what does this 1:2 means? One is the size on drawing, or object, and 2 is the actual size of object. So it means कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी ड्राइंग पे आपने क्या ली हुई है साइज, वो 1 ली हुई है, बट इन एक्चुअल ऑब्जेक्ट इज ऑफ 2 डायमेंशन. फॉर एग्जांपल 1:2 से मुराद ये है कि ये आपका एक्चुअल साइज है 20 mm इस सर्कल का, ठीक है ना, एंड यू वांट टू ड्रॉ इट यूजिंग रिड्यूसिंग स्केल एंड द स्केल इज 1:2. ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप इसको हाफ कर देते हैं. इट इज एक्चुअली 1/2. यू कैन से 1/2. सो इट्स हाफ. तो जब आप इसको हाफ लेते हैं 10 mm डाया, रिड्यूसिंग स्केल के रिड्यूसिंग पे इसका
हो जाएगा 10 डाया, ठीक है ना। तो फिर आप क्या करते हैं, सेंटर पे आप 10 सेंटीमीटर का 10 मिलीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, जिसका डाया जो होगा वो 10 होगा फॉर एग्जाम्पल। सो इसको अब ये बन गया है 10 mm पे, ठीक है ना। तो ये जो है 10 mm का डाया है, बट एक्चुअली दिस ऑब्जेक्ट इज ऑफ 20 डाया, ठीक है ना। दैट इज वाई वी से दैट इज 1:2, और इसको हम कहते हैं, इसको हम लिख देते हैं ये 20 डाया है। नीचे चूंकि हमने रिड्यूसिंग स्केल का बता दिया है कि रिड्यूसिंग स्केल जो है वो 1:2 है। मींस कि ये जो ड्राइंग ये एक्चुअली ये ड्राइंग पे आपने बनाई है, ठीक है ना। तो ड्राइंग पे जो यूनिट है वो एक्चुअल में 2 टाइम्स ज्यादा है। तो ये ड्राइंग में अभी इसको अगर आप मेजर करें फुट से, ठीक है ना, तो ये इसका जो डायमीटर है, ये वाला डायमीटर, ये वाला डायमीटर, ये अगर आप मेजर करें तो ये डायमीटर जो होगा ये 10 mm होगा। बट आप डिफाइन करते हैं कि ये 20 mm का डाया है। क्यों हम ये लेते हैं कि यहाँ पे लेट से यहाँ पे अगर हम मेजर करें तो 10 है, 20 है, क्योंकि हम इस ऑब्जेक्ट को रिड्यूस करके बना रहे हैं, ठीक है ना, ताकि हमारे पास स्पेस बच जाए, ठीक है ना। आगे लेक्चर्स में आते हैं, आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। जिस तरह अगर आप देखें ये जो टर्म है स्केल्स का, ठीक है ना, रिड्यूसिंग है या इनलार्जिंग स्केल है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन से, RF से। RF क्या है? इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ x/y, and it is defined as the ratio of length of drawing to the actual length of object represented. क्या एक मिनट, मैं इसको वापस उस पे जाता हूं। अच्छा, x रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को देख लेते हैं। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या है इसको देखें पहले, और उसके बाद फिर नीचे इसको फर्दर डिस्क्राइब करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ये बराबर है लेंथ ऑन ड्राइंग, लेंथ ऑन ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ, ठीक है ना। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x/y से, वेयर व्हाट इज x? x इज द लेंथ ऑन ड्राइंग एंड y इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अच्छा, फिर अगर हम देखें तो जिस तरह मैंने यहां पे आपको जो एग्जांपल दी कि दिस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, सो ये क्या था? ये y थी, y, ठीक है ना, और ये क्या है? 20 है। और ड्राइंग पे जो एक्चुअल लेंथ थी वो क्या थी? वो 10 थी। तो अगर आप इस रेशो को इस टर्म से भी देखें तो ये वही 1:2 आता है, ठीक है ना। अच्छा, यहां तो ये क्लियर हो जाती है, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेटिव, अगेन आई एम रिपीटिंग, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑन द ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ, क्लियर। सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज x/y, where what is x? X is the length that is drawn on the drawing, and y is the length that is drawn on that is the actual length of any object. For example, इसको अगर आप फर्दर और भी आप इसको सिंपल करें तो आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि अगर आपके पास ये एक मोबाइल फोन है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक मोबाइल फोन है, ठीक है ना, ये उसकी स्क्रीन हो गई, फॉर एग्जांपल रफ स्केच बना रहा हूं, यहां पे इसके बटन्स हो गए, ठीक है ना। और ये इस मोबाइल फोन की अपनी लेंथ है, फॉर एग्जांपल ये 200 है और ये जो है ये 80 है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं। सिमिलरली यहां पे ये इस कोने से स्क्रीन का जो फासला है ये है 20,
अब ये तो एक्चुअल ड्राइंग है, ठीक है ना। अब आप इसको रिड्यूसिंग पे बनाते हैं। रिड्यूसिंग ये है कि आपके पास स्पेस कम है और आप इसको हाफ कर देते हैं। आप चाहते हैं कि मैं इसको हाफ कर दूं, ठीक है ना। तो आप कौन सा स्केल यूज करेंगे? रिड्यूसिंग स्केल, क्योंकि ये रिड्यूस करके आप बना रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आप अगर हाफ पे करते हैं तो 1/2 मीन्स आपने स्केल लेना है 1:2। या अगर आप कहते हैं कि लेट से मेरे पास जो है वो इधर जो हो, क्या नाम है, लेंथ, जो ये वाली लेंथ है, फॉर एग्जांपल ये वाली लेंथ है 200, ठीक है ना। और आप इसको ड्राइंग पे 50 करके बनाना चाहते हैं, तो 50 डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ क्या है इसकी, 200 है ना। तो ये हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 50:200। तो ये 0 0 के साथ कट जाता है, 1 और 4, ठीक है ना। 1:4 पे आप बनाएंगे। मींस अब आप जब इसको 1:4 पे बनाएंगे तो इसकी हर वैल्यू को जो है वो आप जब ड्रॉ करेंगे तो 4 पे डिवाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये लेंथ है 200, इसको आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। तो आप जब इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 50। तो आपने ये वाली वर्टिकल लाइन जो है ये 50 लेंथ की लगानी है, ये वाली वर्टिकल लाइन 50 लेंथ की लगानी है। फिर ये जो 80 है, 80 को अगर आप 4 पे डिवाइड करें तो 20, ये वाली लाइन आपने 20 लगानी है। और फिर इसी तरह ये वाली लाइन वही 200 है तो इसको आपने 40 लगानी है। तो ये आपका ये आउटर बाउंड्री बन गई। लेकिन अब आपने इसको डायमेंशन देनी है कि ये यहां से यहां तक 200 है और यहां से यहां तक 80 है, और नीचे आपने स्केल लिख देना है 1:4। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो कि यहां ये ड्राइंग है, ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये यहां पे ड्राइंग है, ठीक है ना। अब आप देखते हैं कि ये जो लेंथ है इसको आप मेजर करते हैं फुट से, इसकी जो वैल्यू आती है वो आप लिख लें। फॉर एग्जांपल इसकी, चूंकि हमने रिड्यूस करके बनाया तो इसकी वैल्यू थी 20, ठीक है ना। अब 20 है और नीचे इसको आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है 4 से, ठीक है ना, तो ये 80 है, ठीक है। तो ये वही है कि 1:4 पे बनी हुई ड्राइंग बनी हुई है। दैट इज, इसी तरह हम इस ऑब्जेक्ट्स को रिड्यूस करके बनाते हैं। ये रिड्यूसिंग स्केल की समझ आई है किसी को? यस सर। ठीक है ना, ये आसान चीज है, इसमें इतनी मुश्किल नहीं है कोई बात, ठीक है ना। अच्छा, अब हम आते हैं इनलार्जिंग स्केल पे। इनलार्जिंग स्केल क्या है? इनलार्जिंग स्केल ये है कि आपका जो ये डिफाइन किया हुआ है X:Y, ठीक है ना। तो x क्या था? x था दैट इज लेंथ ऑन द ड्राइंग एंड दैट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब अगर यही ऑब्जेक्ट है और इसको आप इनलार्जिंग स्केल पे बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, आप कहते हैं कि ये जो 200 है लेकिन मैं इसको 1000 करके बनाना चाहता हूं, तो इसके लिए आपका क्या RF क्या निकलना चाहिए? लेंथ ऑन द ड्राइंग, विच इज यू वांट टू ड्रॉ दिस 200 एज इनलार्जिंग साइज, ठीक है ना। और इसको आप 1000 बनाना चाहते हैं, ठीक है। जबकि आपके पास एक्चुअल लेंथ क्या है? 200 है। तो ये आपके पास स्केल क्या हो जाएगा? 1000:200। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5:1। अब आपने करना क्या है? ये जब आपने 5:1 वाली स्केल यूज की है, अब आप ये लेंथ जो ड्रॉ करते हैं ये आप ड्रॉ करेंगे कितनी, बताएं? 10। नहीं, 10 क्यों? 5 टाइम ना, बड़ा करेंगे, 5 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगी। तो आपने 1000 मिलीमीटर की लाइन लगानी है, ठीक है। एंड सिमिलरली ये 80 की लाइन ड्रा करनी है, बट यू आर गोइंग टू यूज दिस इनलार्जिंग स्केल, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 80 विथ 5। तो जब 85 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 400 आ जाएगा। तो ये वाली लाइन जो आपने लगानी है ये 400 की लगेगी। सर
जी। सर ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट जरा समझाए सर। अच्छा, एक्चुअल ऑब्जेक्ट में आपको समझाता हूं। मैं आपको कैमरा ऑन करता हूं। अच्छा, ये मोबाइल फोन आपको नजर आ रहे हैं? यस यस सर। सर। अच्छा, इसकी जब आप फुट से ये लेंथ नापेंगे कि ये कितना ये इसका हाइट है, ठीक है ना, या ये साइड कितनी मेजरमेंट, इसकी मेजरमेंट कितनी है, तो जब आप फुट से इसको नापोगे इसकी जो साइज निकलेंगे वो होगा एक्चुअल साइज। सिमिलरली इसकी जो विड्थ है ये जब आप मेजर करके निकालते हो दैट इज नोन इट्स एक्चुअल साइज, ठीक है ना। फिर अगर आप इसके पीछे कैमराज हैं तो कैमराज के जो डायमीटर है वो कितने हैं, ये इसके एक्चुअल साइज है। आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट लेते हो, ठीक है ना, आपके डेली लाइफ में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके सामने है और आपके पास मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं और आप उसको, लेट से ये पेन है, ठीक है ना, और इसका आप डायमीटर मालूम करते हो यूजिंग वर्नियर कैलिपर। तो जब आप वर्नियर कैलिपर से इसका डायमीटर मालूम करते हो और वो डायमीटर जो आपके पास निकलता है दैट इज नोन एज इट्स एक्चुअल साइज, ठीक है ना। अब ये मोबाइल फोन जो था इसके आपने मेजरमेंट की और इसको आपने मेजरमेंट करने के बाद इसके आपने डायमेंशंस नोट कर लिए कि ये साइज कितना है, ये साइज कितना है, यहाँ पे ये जो रेडियस है ये कितना है, लेट से यहाँ पे जो इसके कोने पे बटन लगे हुए हैं, ठीक है ना, ये बटन इस एज से कितने डिस्टेंस पे है, ये सारी चीजें आपने नोट कर ली। अब आपको कोई कहता है कि इस मोबाइल का मुझे इस मोबाइल की ड्राइंग बना कर दो, तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि आप इसको एज इट इज, इसके जो साइजेस हैं जो आपने मेजर किए हैं उसी साइजेस के मुताबिक आप लाइनें लगा के इसकी ड्राइंग बनाओ, ठीक है ना, क्लियर। यस सर। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको रिड्यूस करके बनाओ। रिड्यूस किया है कि आप एक फैक्टर लो जिसको आप इससे इनके सारे साइज से मल्टीप्लाई करो और वो फैक्टर्स की वजह से वो साइज रिड्यूस हो जाए, ठीक है ना। उसको, ऐसे फैक्टर को हम कहते हैं रिड्यूसिंग फैक्टर इन विच द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन स्मॉलर देन इट्स एक्चुअल साइज। And the third option that you have is to draw this mobile phone on in large scale. In large scale means कि अगर आप कहते हो कि मैं इसको बहुत बड़ा करके बनाना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इतना बड़ा हो कि वो A4 पेज के उसके मुताबिक हो, उसकी चौड़ाई लंबाई उसके मुताबिक हो, ठीक है ना। देन अगेन यू हैव टू सिलेक्ट अ फैक्टर, कि आप एक फैक्टर लोगे और वो फैक्टर इसकी सारी लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे जिससे इसकी सारी डायमेंशंस बड़ी हो जाएंगी और फिर उसी के मुताबिक जो है वो आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करोगे। क्लियर, समझ आई अभी आपको? यस सर। अच्छा, यही मैं कह रहा था कि फॉर एग्जांपल यही ऑब्जेक्ट है, 200 इसकी लेंथ है और 80 मिलीमीटर इसकी विड्थ है और इसको मैं इनलार्ज करके बनाना चाहता हूं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 200 डिस्टेंस था, ठीक है ना, और इसको मैं 1000 बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इसकी ये लेंथ जो है वो 1000 mm हो, ठीक है ना। तो 1000 जो होगी उसकी क्या होगी, लेंथ ऑन ड्राइंग होगी, डिवाइड बाय, जब उसको डिवाइड करेंगे एक्चुअल लेंथ इसकी क्या है 200, तो आपके पास क्या आता है 5, इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 5, ठीक है ना। अब ये वो फैक्टर है जिसको हम इस 5 को हम इसकी सब डायमेंशन से मल्टीप्लाई करेंगे और जब ड्रॉ करेंगे तो वो होगा 5 इंटू इट्स दैट डायमेंशन, ये वाली, ठीक है ना। जिस तरह मैंने इधर आपको अभी एक लेट से अगर मैं इस लेंथ को ये 5:1 पे बनाना चाह रहा हूं तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, ये वाली, ये 1000 हो जाएगी। तो मैं इधर लाइन लगाऊंगा फुट से 1000 mm, ये फॉर यहाँ पे तो अभी मैं फुट मेरे पास नहीं है लेकिन मैं ये लेंथ जो लगाऊंगा ये 1000 होगी, ठीक है ना। सिमिलरली ये वाली जो लेंथ है अगर इसको मैं 5:1 पे बनाना चाह रहा हूं, ठीक है ना, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 80 मल्टीप्लाई बाय 5 400, तो ये हो जाएगा इस तरह हॉरिजेंटल 400। सिमिलरली ये वही 1000 और इसको मैं क्लोज कर देता हूं तो ये हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ये 400 है, लेकिन मैं इधर लिखूंगा 80 और इधर लिखूंगा 200 और मैं इधर इसको नीचे लिख दूंगा 5:1 पे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ड्राइंग से आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये एज 200 है और ये एज 500 है, ठीक है ना, ताकि उसको जो जो बंदा ड्राइंग बनाता है
वो एक्चुअली इसी को, लेकिन आपने उसको इसका साइज बड़ा करके दिखाया है तो ये 200 और ये 80, और यहाँ पे जब आप ये दे देते हो 5:1 तो उसको पता चल जाता है कि ये जो है ऑब्जेक्ट इसने 5 टाइम बड़ा करके बनाया है, ठीक है ना। तो ये आपको रिड्यूसिंग स्केल और इनलार्जिंग स्केल की समझ आ गई? यस सर। अच्छा, एक और है रिड्यूसिंग स्केल और इनलार्जिंग के बाद एक और है हमारे पास 1:1 स्केल, 1:1 स्केल, या इसे हम कहते हैं फुल साइज स्केल। अब ये क्या है 1:1 स्केल या फुल साइज स्केल क्या है? अगर किसी ऑब्जेक्ट को whenever you are going to draw the drawing of any part that is based on its actual size 200 और 80, ये आपके ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज है और आप इसको उसी साइज के मुताबिक बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये इस लाइन को भी 200 लेते हैं और इसको भी 80 मिलीमीटर नाप के बनाते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट बनता है दैट इज नोन एज फुल साइज स्केल और 1:1 स्केल। इसको हम कहते हैं 1:1 स्केल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ड्राइंग पे जो लेंथ है दैट इज एक्चुअली द सेम एज एक्चुअल लेंथ, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो 3 किस्म के scales हैं। The first one is reducing scale, the second one is enlarging scale, and the third one is full size scale. Remember हमने representative fraction define किया था कि it is represented in the form of x/y, where x is length on drawing and y is actual length of object. अच्छा, अगर एक और शॉर्ट तरीका है कि आपको किस तरह पता चलेगा कि ये 1:2 या 2:3 ये किस तरह का स्केल है, तो अगर आप याद रखें कि लेट से आपके पास है 1:2 या 5:300 या इसी तरह लेट से एग्जांपल है कि 1:100 या 2:80, ये जितनी भी एग्जांपल्स अगर आप देखें तो ये अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं x/y की मदद से, ठीक है ना। अगर आपके पास x की वैल्यू लेस है y से, इन दिस ऑल केसेस देखें ये x की वैल्यू लेस है y से, x की वैल्यू लेस है y से, x की वैल्यू लेस है y से, तो व्हेन x इज लेस देन y देन दिस इज नोन एज रिड्यूसिंग स्केल। क्लियर? Yes, sir. अगर आपके पास 2:1 है या 50:2 है या 1000:2 है, तो इस सिनेरियो में देखें कि आपके पास क्या है, x इज ग्रेटर देन y। अब x इज ग्रेटर देन y क्या मतलब कि एक्चुअल लेंथ ऑन ड्राइंग इज ग्रेटर देन एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, मींस ड्राइंग पे ऑब्जेक्ट को आपने बड़ा करके बनाया है, ठीक है ना। सो फुल इनलार्जिंग स्केल में आपके पास क्या है, x इज ग्रेटर देन y, दैट इज नोन एज इनलार्जिंग स्केल। एंड फुल साइज स्केल फॉर एग्जांपल 1:1, दैट व्हेन x इज इक्वल टू y देन द स्केल इज नोन एज फुल साइज स्केल। I hope it is clear to you now. Yes, sir. Should we move forward? Sir. Yes, sir. Okay. So representative fraction RF is defined as the ratio of length of drawing to the actual length of object represented. It is represented in the form of x/y, where x is defined as it is the unit on drawing, where y is the representation on the actual object. A scale of 1:2 means that 1 unit of length on drawing representing 2 unit of length of the object. Means कि जो ड्राइंग पे जो 1 यूनिट लेंथ है
वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट की उधर 2 है, ठीक है ना, तो मींस आपने ऑब्जेक्ट को रिड्यूस करके बनाया है। एंड इन दिस केस यू कैन सी दैट x इज लेस देन y, सो इन शॉर्टकट यू कैन से दिस इज रिड्यूसिंग स्केल। A scale of 2:1 means 2 unit of length on drawing representing 1 unit of length of the objects. It means कि जो ड्राइंग में जो 2 यूनिट्स हैं, ठीक है ना, वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट का 1 यूनिट है, तो ड्राइंग पे आपने उसको इनलार्ज करके बनाया है। यू कैन सी दैट x is greater than y, so that is known as enlarging scale. Now we have these reducing and enlarging scale that is of metric scale, or that can be in inch, foot, or English scale. So first we will describe metric scale. In metric scale, it is based on decimal system. Decimal means that you are going to deal with points. For example, 1.3 or 1/10, 2/50 or 3.56. So this is decimal system. Clear? So reducing scale the scales that is based on metric system is on decimal system. Reducing scale in this metric scale or that is based on decimal system is usually represented as 1:2, 1:2.5, 1:5, 1:10, etc. So you can see this is based on decimal system. And enlarging scale is represented in the form of 2:1, 2.5:1, 5:1. ये आपको जस्ट एग्जांपल बता रहा है कि अगर आप डेसिमल सिस्टम यूज करते हैं तो उसमें रिड्यूसिंग स्केल को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, और इनलार्जिंग स्केल को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इसमें देखें तो इन सब में x की जो वैल्यू है वो लेस देन y है, दैट इज नोन एज रिड्यूसिंग स्केल। और इन एग्जांपल में अगर आप देखें तो x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन y है, दैट इज व्हाई दिस इज enlarging scale. Now in inch foot systems or English scales that can be used as decimal as well as fraction. Reducing and enlarging scale have similar RF to metric scales in decimal system. अगर आप English system को decimal में use कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसकी representation same है as metric scale. But fraction system has RF of type 1:2, 1:3, 1:4, 1:16 or 1:12 etc. or vice versa. अगर vice versa means कि अगर आप इसको अपोजिट कर देते हैं तो ये enlarging scale बन जाता है। यहाँ तक क्लियर? अगर क्लियर है तो we should move forward. Yes sir. अब आते हैं हम डायगोनल स्केल पे, ठीक है ना। डायगोनल स्केल पहले डिफाइन करते हैं, डायगोनल स्केल है क्या चीज, और उसके बाद जो है उसकी फर्दर आगे जो है जितनी भी चीजें आ रही हैं वो हम डिस्क्राइब करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद डायगोनल स्केल। अच्छा, in recent class we discussed that whenever you have any measurement like 2.367 centimeter, so if you have a simple measurement that is 2.3, you can measure it using your scale very easily. For example, this is 0, this is 1 centimeter, and this is 2 centimeter, and this is 3 सेंटीमीटर। और अगर आप इस 0 और 1 के दरमियान भी देखें तो यू कैन सी दैट देयर इज 10 डिविजन्स अवेलेबल। आई may not be able to draw it accurately, so kindly assume that this is divided into 10 sections. So whenever you have been asked to measure 2.3 centimeters, so it's very easy. You will start from this point, and this is 2, this is 2.1, this is 2.2, and this is 2.3. So from this point till this point, this distance is 2.3 centimeter. But what about if you have been given 2.367? So again, this is 3 and this is 4.
in between these 3 and 4 it is further divided into 10, but you cannot divide here, or you cannot measure this 6.6.06, and again for this term you cannot further divide. So such type of measurements can be measured by using a scale that is known as diagonal scale. So diagonal scale are the scales that can measure fractions or decimals etc. So अगर आप मैं इसको लिखूं 2.367, again I have discussed it in previous class that we can write 2.367 as 2 plus 0.3 plus 0.06 plus 0.007. Clear? क्लियर के नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, यहां पे अगर आप देखें तो ये डेसिमल के बाद जो है ये इसकी जो पोजीशन है, ये इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं फर्दर अगर मैं लिखूं तो ये मैं लिख सकता हूं 3/10 प्लस 6/100 प्लस 7/1000 लिख सकता हूं ना? तो इसकी जो पोजीशन है 1/10 की है, इसकी पोजीशन है 1/100 की, और इसकी पोजीशन जो है 1/1000 की। ठीक है ना? कहने का मकसद ये था कि we can measure this type of reading using diagonal scale, but diagonal scale we have different type of diagonal scale. We have a diagonal scale which can measure 1/10 of any measurement, ठीक है ना, और 1/100 of an inch for example, or 1/1000 of an inch, ठीक है ना। if you have this scale, ठीक है ना, तो आप उस पे ज्यादा से ज्यादा मेजरमेंट 2.3 तक कर सकते हो, मतलब 0.3 1/10 की, जैसे फॉर एग्जांपल 5.3 हो गया, 6.7 हो गया, इस तरह की मेजरमेंट you can take by using this scale. But if you have this scale, so you can now take reading 5.37, 2.76, 10.96, इस तरह की रीडिंग्स जो है वो आप, अगर आपके पास एक डायगोनल स्केल है that can be measured 1/100, so this such type of readings can be taken using this scale. But if you have 3.769, 4.6572 or 1000.375, so such type of readings can be measured by using this diagonal scale, which can measure up to 1/1000 of an inch or any measurement, ठीक है ना। तो अगर आपके पास इस तरह की रीडिंग है, so you have this scale, so you cannot use the diagonal scale for this diagonal scale for measurement of 3.769. But again, if you have a scale that can measure 1/1000 of an inch or any measurement, so definitely this type of measurement can be measured using this scale. यहां तक समझ आई? Yes, sir. अगर आपको डायगोनल स्केल की समझ आ गई कि डायगोनल स्केल है क्या चीज, उसका पर्पस क्या है, then we will move toward how to draw diagonal scale. If this is clear to you, then we will move forward. सर ये 1/100 से क्यों नहीं मेजर कर सकते, ये एक्सप्लेन कर दें दोबारा। कौन सा 1/100 से नहीं यूज कर सकते? ये वाली रीडिंग आप किसकी बात कर रहे हो? यस सर। बच्चे ये देखिए ना, इसमें जो आखिरी 9 है वो क्या है? 0.9, इसको मैं लिख सकता हूँ 9/1000। यस सर। ठीक है ना, तो ये इसकी मैक्सिमम लिमिटेशन क्या है? 1/100। तो ये इतनी पोजीशन तक मेजर कर सकता है, इसकी गुंजाइश इसमें नहीं है।
ठीक है ना। इसलिए ये जो है इस तरह की रीडिंग्स जो है ये 1/100 1/1000 ऑफ एन इंच और एनी मेजरमेंट उसके लिए यूज होगी। जब ये लेक्चर एंड होगा आपको आगे आ रहा है डायगोनल स्केल किस तरह बनाते हैं, उस पे रीडिंग किस तरह लेते हैं, दैट देन इट विल बी क्लियर टू यू पीपल। यस सर, थैंक यू। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? सर फिर इसको 1/1000 में कैसे किए सर? ये जो किसको? लेफ्ट साइड पे सर लिखा हुआ है कौन सी साइड पे? 5.36.7 सर, ये सब इसको सर लेफ्ट साइड पे सर ये 5.36.7 सर, इसका आपने एरो लगा के 1/1000 पे लेके गए सर, ये कैसे फिर? इसको अच्छा, ये अच्छा मैं आपकी बात समझ गया हूं। ये जो आप कह रहे हैं कि ये वाली रीडिंग्स जो है ना, अगर आपके पास ये वाला स्केल है तो आप इनको इससे मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखें 1/1000 तक मेजरमेंट है, तो 1/100 तो इसमें आ जाती है। और वो किस तरह आती है वो आगे आपको 2-3 स्लाइड्स के बाद आपको समझ आ जाएगी। ओके सर। ठीक है, so we should move now you can see that this is for example inch, and you might have noticed that on your ruler or your scale an inch is divided into 8 parts. अगर आप फुट को देखें तो उसमें इंच को 8 हिस्सों में तकसीम किया गया होता है, 10 में भी होता है, ठीक है ना। सो अगर फ्रैक्शंस की बात करें तो अगर आप लेट सपोज दिस इज an exaggerated version, or you can say this is drawn in large. For example, this is 1 inch, and if you want to divide into 2, so one of its portion will be 1/2, and this will be also 1/2. When you add 1/2 with 1/2, it will give you total 1 inch. Clear? अच्छा, यही 1 इंच है और इसको हम 4 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं। तो जब हम इसको 4 पे डिवाइड करते हैं तो इसका हर एक हिस्सा जो है, ये हर एक हिस्सा, ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा और ये भी 1/4। लेकिन जब हम सबको सब करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो 1 इंच आ जाएगा। तो ये किसका माइक ऑन है, ये ऑफ करें। Similarly, if an inch is divided into 8 equal parts, the single segment will be of dimension 1/8. Similarly, this will be 1/8, this will be 1/8, 1/8, 1/8. So this is how I want to say that whenever you divide any measurement into equal number of parts, so in fraction that will be equal one of its division. For example, अगर आपके पास 1 इंच है और इसको आप 12 हिस्सों में तकसीम करते हैं तो इसका हर एक हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, ठीक है ना। अच्छा, ये सिर्फ समझाने की हद तक है, आगे स्केल्स आते हैं फिर उस पे आपको समझाएंगे, लेकिन ये समझना आपके लिए जरूरी है। Similarly, when you divide an inch into 16 equal parts, then every segment will be 1/16, ठीक है ना। Okay, when you divide it into 32 equal parts, then every single portion will be 1/32 of an inch. ये थी इंच की डिवीजन इनटू फ्रैक्शंस। व्हेन यू डिवाइड, अब आते हैं डेसिमल सिस्टम पे, ठीक है ना। ये वही 1 इंच है और इसको अगर आप 10 हिस्सों पे तकसीम करते हैं, मतलब इसको पहले 2 पे करते हैं, जब 2 पे इसको डिवाइड करते हैं तो इसका हर एक हिस्सा अगर हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करें तो ये 1/2 होगा, लेकिन हम फ्रैक्शन पे रिप्रेजेंट नहीं करते, हम डेसिमल की बात करें तो इसका हर एक हिस्सा जो होगा 0.5 और 0.5 होगा, ठीक है ना। तो ये भी 0.5 होगा और ये भी 0.5 होगा। फिर हम जब इसको 10 हिस्सों में तकसीम करते हैं 1 इंच को, तो हमारे पास जो है वो क्या आता है, एक हिस्सा 0.1, तो इसका हर एक जो है वो डिवीजन 0.1 होगा। क्लियर? यस सर। yes sir.
वन मोर थिंग कि आपकी अटेंशन रिक्वायर होगी क्योंकि वी विल मूव टुवर्ड द एक्चुअल थिंग, ठीक है ना, तो आप गौर से जरा देखें। अच्छा, नाउ वी विल डिस्कस हाउ वी विल ड्रॉ द डायगोनल स्केल दैट इज बेस्ड ऑन डेसिमल। डेसिमल से मुराद इशारिया वाला, ठीक है ना, जिस पे आप मेजरमेंट कर सकते हो डेसिमल की, ठीक है ना। एंड यू हैव टू ड्रॉ a diagonal scale which can measure 1/100 of an inch। कि अगर आपके पास 1 इंच है, फॉर एग्जाम्पल 1 इंच, ठीक है ना, और आप डायगोनल स्केल बनाना चाह रहे हैं और उस डायगोनल स्केल पे आप 1/100 ऑफ एन इंच, 1/100 कितना हो जाएगा? 0.001। क्लियर? कि आप 0.001 इंच मेजर कर सको। तो अगर आपके पास फुट हो तो आप फुट पे कितना 0.001 इंच मेजर कर सकते हो कि नहीं? नो सर। नो सर, ठीक है, एग्जैक्टली। सो फॉर दैट, ये इसका मतलब ये कि आप 1 इंच को 100 हिस्सों में तकसीम करें और फिर उसका 100वां हिस्सा मेजर करें, 1/100, which is 0.001। So in this topic we will draw a diagonal scale that can measure 1/100 of an inch, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। आपने पहले क्या करना है? सबसे पहले आपने एक 1 इंच की लाइन लगानी है। ये यहां पे थोड़ा आपको ये बड़ा करके दिखाया गया है। नाउ अगेन हम बाद में बात करेंगे कि इन डायगोनल स्केल को हम रिड्यूसिंग और इनलार्जिंग स्केल पे भी बना सकते हैं, लेकिन फर्स्ट हम सीखते हैं कि ये डायगोनल स्केल बनती किस तरह है, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज ये वाली लाइन जो आपको नजर आ रही है, ये वाली 1 इंच की आपने लाइन लगानी है। इसको आपने डिवाइड करना है 10 इक्वल पार्ट्स में। क्लियर? इसको आप यहीं पे डिवाइड कर दें 1 2 में। लाइन इसलिए नहीं लगा रहा कि आगे आ रही है, ठीक है। आपने इधर, मैं दोबारा से इसको करता हूं कि ये आपने हॉरिजॉन्टल एक लाइन, अच्छा चले मैं आपको थोड़ा इधर अलग समझा देता हूं और फिर उसके बाद जो हम आते हैं एक्चुअल उस पे। अच्छा, ओके, सो लेट्स यू हैव 1 इंच लाइन। आपने इधर 1 इंच की हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी और उसको आप तकसीम करते हैं 10 इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है 1 इंच से ज्यादा एक्चुअल में, लेकिन मैंने समझाने के लिए, मेरे पास चूंकि यहाँ पे फुट नहीं है तो इसलिए ये आपके पास 1 इंच की लाइन है और उसको आपने 10 में डिवाइड किया। इसका हर एक हिस्सा कितना होगा? 1/10। 1/10, सही है। तो हर एक इसका हिस्सा होगा 1/10, ठीक है ना। और ये इसको अगर हम डेसिमल की बात करते हैं तो 1/10 विल बी 0.1। तो इसका ये हिस्सा भी 0.1 होगा, ये भी 0.1 होगा, ये भी 0.1 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो अगर आपके पास लेट से आपको कहा गया हो कि एक मेजरमेंट है, ठीक है ना। अच्छा, ये यहां से यहां तक ये 1 इंच है और फिर यहां से यहां तक जो है वो ये हो गया 1। ये लेट से मेरे पास 0 है, ये 1 है, ये 2 इंच है और ये मेरे पास 3 इंच है, ठीक है ना। अब अगर मुझे एक 2.4 इंच मेजर करने का कहा गया हो तो मैं किस तरह मेजर करूंगा? मेरे पास कहां से कहां तक होगा? जी बताएं, कोई बता सकता है? सर 2 से 3 तक के दरमियान तक। अच्छा, इसको अगर मैं लेट से इसको मैं जरा 1 मिनट सब्र करें, ठीक है, 1 मिनट। ये अगर मेरे पास ये एक और 1 इंच हो गया फॉर एग्जांपल और ये 1 और इंच हो गया, इनको मैं रहने देता हूं। मैं यहां से शुरू करता हूं 0, ये 1, ये 2,
ये 3। अगर हम देखें तो ये 1 इंच ये है, 2 3 4, तो इस स्केल पे हम मैक्सिमम 4 इंच तक मेजरमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लेट्स से 2.4 इंच आपको मेजर करना है, तो आप कहते हैं कि जी 0 से लेके 2 तक तो ये 2 इंच हो गया, तो ये 0.1 0.2 0.3 0.4, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का ये डिस्टेंस जो है ये कितना होगा? 2.4। 2.4 इंच। लेट्स से मुझे कहा गया हो 3.7 मेजर करें, तो 3.7 क्या है? ये 0.4 है, 0.5 0.6 0.7, तो यहां से इस पॉइंट से लेके ये 3 तक का ये डिस्टेंस ये कितना होगा? 3.7। 3.7 इंच, ठीक है ना। और अगर मुझे कहा गया हो कि 0.6 इंच मेजर करें तो वो कितना होगा? वो यहां से लेकर 1 2 3 4 5 6 यहां तक होगा। ये चीजें समझ आ रही हैं आपको? यस सर। अच्छा, ये तो सिंपल चीज है ना। मैं आगे आपको फर्दर जो आगे कहना चाह रहा हूं वो मैं आपको अभी मैं बताता हूं। तो ये अगर आपको इस तरह का स्केल दिया गया हो, ठीक है ना, सो ये क्या कितने कितने तक मेजर कर सकता है? दिस कैन मेजर 1/10 ऑफ इन इंच या 0.1 इंच तक ये स्केल मेजर कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं स्केल पे कहूं कि 2.45 inch. So can we measure 2.45 on this such scale? नो सर। No. So for that we have to draw a scale that can measure 1/100 means 0.01 inch, ठीक है ना। तो उसके लिए आगे प्रोसीजर करते हैं, उसके लिए मैं आगे आपको बताता हूं कि आपने करना क्या है। अगर यहां तक आपको समझ आ गई दैट्स गुड। अच्छा, दोबारा इसको देखते हैं कि लेट्स से तरीका क्या था। आपके पास 1 इंच है और उसको आपने 10 हिस्सों में तकसीम किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। अच्छा, फिर आपने क्या करना है? आपने वर्टिकल भी 1 इंच की लाइन लगानी है, जितनी यहां पे थी उतनी भी आपने यहां पे भी लगानी है, और इसको भी 10 इक्वल पार्ट में तकसीम करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो ये भी 10 हिस्सों में तकसीम हो गया, ये भी 10। अब इनको इस तरह करते हैं कि इसको नंबरिंग कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। और ये 10 है, 10 नहीं लिखते। इसी तरह ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10th वाला भी है। कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। और ये इसको वापस मैं 0 लिख देता हूं या जो भी। अच्छा, फिर आपने क्या करना है? आपने सेट टी स्क्वायर रख के और इस 1 पॉइंट पे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। सिमिलरली 2 पे भी आपने रख के हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, 3 पे भी आपने हॉरिजॉन्टल, 4 पे भी हॉरिजॉन्टल। ये आगे नीट तरीके से भी है, लेकिन मैं जस्ट आपको सिर्फ यहां पे समझाने की हद तक। 7 से भी हॉरिजॉन्टल, 8 से भी हॉरिजॉन्टल लाइन, 9 से भी हॉरिजॉन्टल लाइन, और फिर 10 से भी हॉरिजॉन्टल लाइन। सिमिलरली ये जो 0 पॉइंट से था, आप यहां से भी वर्टिकल बिल्कुल एक, अभी यहां से ड्रॉ नहीं हो रही, चले इसको मैं फॉर एग्जांपल ये एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है ना। अब मैं आता हूं इस पे, यहाँ पे आपको सही समझाता हूँ। आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई 1 इंच की, आपने वर्टिकल लाइन लगाई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई और फिर ये वर्टिकल लाइन लगाई, और इसको आपने बंद कर दिया। ये आपके पास एक स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। अब आपने करना क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिस तरह यहाँ पे है, और उनको नंबरिंग कर देनी है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 till 9। एंड सिमिलरली यू हैव टू divide this vertical line into 10 equal parts,
क्लियर अप टिल नाउ? यहां तक क्लियर? यस सर। Okay, then you have to draw horizontal line using t square. T square 0.1 पे रख के आपने horizontal line लगानी है इस तरह। सॉरी, अच्छा इसको भी नेग्लेक्ट करें इस लाइन को, या ये कर लें या वो कर लें, कोई बात नहीं है। अच्छा ये देखें, 1 से लाइन लगाई हॉरिजेंटल, फिर 2 से लगाई, 3 से, 4 से, 5 से, ठीक है ना। मैं वापस अपनी स्लाइड की तरफ जाता हूं, यहां पे, ठीक है ना। आपने इस तरह लाइन लगाई और आपने ऊपर भी 1 2 3 4 पे डिवाइड करना है। जिस तरह आपने नीचे किया था आप ऊपर भी डिवाइड करेंगे इस तरह, 2 3 4 5, ठीक है। अब आपने करना क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के बाद ये जो ये 0 है ये भी 0 है, आपने ये 1 है, इस 1 को आपने 0 से मिला लेना है इस तरह। यहां पे ठीक नहीं बन रहा, लेकिन आपने फिर जो 2 है उसको 1 के साथ मिला लेना है, 3 है उसको 2 के साथ मिला लेना है, 4 है उसको 3 के साथ, 5 को 4 के साथ, जिस तरह यहां पे शो किया गया है। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं। 1 इंच की हॉरिजेंटल लाइन लगाई, 1 इंच की वर्टिकल लाइन लगाई और आपने उसको स्क्वायर बना दिया, ठीक है ना। अब आपने ऊपर और नीचे दोनों जो लाइनें हैं उनको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। एंड सिमिलरली आपने राइट साइड, लेफ्ट साइड पे जो ये वाली लाइन है इसको भी आपने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। अब आपने 2 तरीके हैं, या तो आप पहले हॉरिजेंटल लाइंस लगाएं या बाद में लगाएं। चलें यहां पे इन्होंने इस तरह किया है तो इसको फॉलो कर लेते हैं। अब आप इस 1 को 0 से मिला दें, 2 को 1 से मिला दें, तो कुछ आपके पास इस तरह बन जाएगा। यहां तक समझ आ गई? यस सर। सर जी जी सर, ये जी। दूसरी साइड पे हमने क्यों नहीं लगाई सर लाइन? किस साइड पे? सर ये राइट पे सर। इधर? यस सर। एक ही चीज है बच्चे। अच्छा एक वन मोर थिंग के एंड ऑफ दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन आपके जहन में भी आएंगे, अभी आपको चूंकि समझ नहीं है, तो मे बी के एंड ऑफ दिस टॉपिक जो है यू विल हैव देन नो एम्बिग्युइटी इन योर माइंड, ठीक है ना। तो थोड़ा आप लोगों ने सब्र करना है, ठीक है ना। आखिर में बेतहाशा क्वेश्चन पूछे, जितने क्वेश्चन आपने पूछने हैं पूछे। यहां तक अभी आपको क्लियर है? यस सर। ओके, देन यू हैव टू ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइंस। 1 से ड्रॉ करें, 2 से ड्रॉ करें, 3 से, 4 से, यूजिंग टी स्क्वेयर, ठीक है ना। जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह आ जाएगा। यहां तक समझ आ गई? यस सर। अच्छा, फिर अब ये स्केल जो है ना, ये एक डायगोनल स्केल है। नाउ दिस इज द स्केल, दिस इज अ डायगोनल स्केल एंड दैट कैन मेजर अप टू 1/100 ऑफ एन इंच। किस तरह 1/100 ऑफ एन इंच मेजर करते हैं? जिस तरह आपने देखा इसको 1/10 पे डिवाइड किया, मतलब इसका हर एक हिस्सा 1/10 के बराबर है, तो इसको भी 1 हमने 1/10 पे डिवाइड किया। बट एक्चुअली ये पूरा का पूरा स्केल है 10 10s are 100, तो ये 1/100 ऑफ एन इंच को मेजर कर सकता है। किस तरह मेजर कर सकता है? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 0.37 डिस्टेंस है, अब 0.37 को मैं लिख सकता हूं कि दैट इज इक्वल टू 0.3 प्लस 0.07, लिख सकता हूं ना? यस सर। तो ये जो 0.3 है, ये वाली मेजरमेंट हम इस स्केल पे लेंगे हॉरिजेंटल पे, और ये जो वर्टिकल है इस पे हम 1/100 ऑफ लेंगे। इसको मैं फर्दर इस तरह लिख सकता हूं 3/10 प्लस 7/100, सही है ना। तो ये जो 3/10 वाली है वो हम यहां पे लेंगे, और 7/100 की जो वैल्यू है वो हम वर्टिकल लेंगे। नाउ लेट्स सी कि ये 0.37 हम इस पे किस तरह मेजर करते हैं। तो पहली बारी आती है 0.3 की। तो 0.3 हमें पता है कि ये डिस्टेंस जो है 0 से यहां तक, ये 0.1 है, ये 0.2 है और ये 0.3 है। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का ये डिस्टेंस जो है ये कितना है? 3
0.3 नहीं, ठीक है ना। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये है कि इसके बाद 7 और 100 की बारी है, तो वो आपने किस तरह मैयर करना है, आप ऊपर की तरफ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास ये पॉइंट आ गया, ठीक है ना। अब इस पॉइंट से लेके ये, चूंकि ये वाला पॉइंट क्या था, ये पॉइंट, इस पे रीडिंग क्या है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे रीडिंग क्या होगी, 0 इस पॉइंट पे कितनी होगी, 7.0 सर। नहीं, 0.3 अच्छा ये था 0 से यहां तक 0.3 है, तो ये यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस जो है ये 0.37 होगा, ठीक है ना। यहां पे भी 0 है, आपको ये 0.37 की समझ आई। सर No, फिर से sir. समझा दो। अच्छा लेट्स से मेरे पास एक वैल्यू है 0.79, इसको देखें, तो 0.79 को आप किस तरह इस पे प्लॉट करेंगे, उसके लिए तरीका ये है कि आपने सबसे पहले क्या मेजर करना है, 0.7 को, तो 0.7 कहां से कहां तक होगा, यहां से लेके इस 7 तक, ये जो पॉइंट है यहां से लेके इस पॉइंट तक ये डिस्टेंस जो है 0.7 होगा, फिर आपने 9 ऊपर जाना है 7 पॉइंट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का ये डिस्टेंस जो है ये 0.79 होगा, ये सर क्लियर हो गई अभी। ठीक है ना। लेट्स से अगर आपके पास है 0.23, तो 0.23 क्या है, यहां से यहां तक 0.2 है, और 1 2 3, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो होगा 0.23 होगा, ठीक है ना। 0.54 क्या होगा, तो 0.5 यहां है, 1 2 3 4, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है ये वाला, ये होगा 0.54। एनी कंफ्यूजन? No, sir. नो सर। ओके। अब अगर आपने ये, तो ये वाला जो सिर्फ ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये मैक्सिमम 1 इंच तक मेजर कर सकता है मैक्सिमम, और मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, 0.01 0.01 या 1/100 ऑफ एन इंच, ठीक है ना। नाउ व्हाट अबाउट इफ यू हैव 2.37 6.54 1.39, तो इस तरह की रीडिंग के लिए आपने क्या करना है, आपने इसके साथ ये बनाना जरूरी है, इसके साथ आप सिंपल में ऐड करते जाएं, आप 1 और इंच कर दें, 1 2 and 3, आगे देखते जाएं आपको समझ आएगी। इस तरह ये देखें, ये 1 इंच इसके साथ फर्दर ऐड कर दिया, 2 इंच हो गए, 3 इंच, तो ये स्केल मैक्सिमम कितने इंच तक मेजर कर सकता है, इसका आंसर मुझे अभी दें, 3 सोचें। 3.9. सर 4 इंचेस तक। ये मैक्सिमम 4 इंच तक मेजरमेंट कर सकता है, और मिनिमम कितना कर सकता है, 0.01 0.101, गुड, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं, अब इसमें करना क्या है, आपने सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, इनको आपने एक्सटेंड करनी है, क्लियर। यस सर। अब मेरे पास रीडिंग है 2.59, तो पहले मैं इस 0.5 को देखूंगा, तो 0.5 ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस पॉइंट से लेकर इधर तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 0.59 0.9, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 1.59 1.59, तो मेरे पास 2.59 होगा, वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का ये डिस्टेंस जो होगा
ये मेरे 2.5 पास 2.59 होगा। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल, इसने जो 1.37, तो अगर आपको देखें तो ये ऑलरेडी रेड शेडेड है, तो 0.3 क्या होगा? 0.3 ये होगा, और 1 2 3 4 5 6 7, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 0.37 है, और इसके साथ 1 इंच और ऐड कर दे, तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के दरमियान का डिस्टेंस 1.37 हुआ। आई होप इट इज क्लियर नाउ। यस सर। एनी कंफ्यूजन? किसी का कोई क्वेश्चन? No, sir. आपको 2.67 जो प्लॉट हुआ है उसकी समझ आई है? देखिए जरा इसको, स्लाइड Yes, को। sir. So this was all about drawing a diagonal scale that can measure up till 1/100 of an inch. ठीक है, तो अभी हमने अभी तक जितना किया, तो हमने पहले पढ़ा स्केल क्या है, टाइप्स उसकी क्या थी, बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग इनलार्जिंग टाइप्स, ठीक है ना। फिर हमने डायगोनल स्केल का पढ़ा, डायगोनल स्केल क्या है, और डायगोनल स्केल में हमने स्केल ड्रा करना सीखा दैट कैन मेजर अप टिल 1/100 ऑफ एन इंच, विच इज डेसिमल सिस्टम। अब ये अगला पोर्शन जो है ये भी आसान है, अगर आपको इन चीजों की समझ आ गई है, सो डेफिनेटली यू विल बी एबल इजीली टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। Now you will have here you have been asked to draw a fraction based diagonal scale. Now fractions means in parts, not in decimals, ठीक है ना। And here you have been asked to measure dimension with least count. Least count means is the minimum distance that can be measured. So with the least count of 1/64 of an inch or smaller, ठीक है ना। तो 1/64 ऑफ एन इंच का क्या है, तो अब आप देखें 1/64 पहले था हमारे पास 1/100, तो आपने करना क्या है, आपने यही करना है, मैं आपको थोड़ा इधर, कि आपने 1 इंच ले लेना है और इसको 8 हिस्सों में तकसीम करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये सारे इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे मैं रफली ड्रा कर रहा हूं, इसलिए ये बड़ा है ये छोटा है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। और इसी तरह आपने इस वर्टिकल लाइन को भी 8 हिस्सों में तकसीम कर लेना है, तो इसका हर एक हिस्सा कितना होगा 1/8, और इसका भी 1/8 होगा, बट 1/8 by combinedly they can measure up till 1/64 of an inch. How? तरीका वही है, इधर देखते जाएं। हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई 1 इंच की, फिर वर्टिकल लाइन लगाई 1 इंच की, और आपने इसको क्लोज कर दिया, इसको 8 हिस्सों में तकसीम किया, इसको भी 8 हिस्सों में तकसीम किया, 1 को 0 से ज्वाइन कर दिया, 2 को 1 से ज्वाइन कर दिया, 3 को 2 से ज्वाइन कर दिया, एंड सो ऑन। फिर यूजिंग टी स्क्वायर यू हैव टू ड्रॉ लाइंस from 1, from 2, from 3 till you will get like this. Now this is the scale which can measure up till 1/64 of an inch. But remember, यहाँ पे आप एक चीज याद रखेंगे कि इसका ये वाला हिस्सा कितना होगा 1/8, ये क्या होगा, ये भी 1/8 होगा, ठीक है ना, ये भी 1/8 होगा, 1/8। तो इसको हम इस तरह याद रखते हैं कि ये 8 16, सॉरी मैं थोड़ा इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, नोटेशन डिस्कार्ड, 1 मिनट, इसको मैं दोबारा, अच्छा ये देखिए, इसको वही है कि ये 1 पे, मतलब इसको मैं याद करने के लिए ये 8 16
8 का फैक्टर मल्टीप्लाई करते जाएं, 8 8 दूने 16, 24, 32, 40, 48, 56। सिमिलरली ऊपर भी आपने इस तरह, मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे ये हमने, ठीक है ना, तो उसकी रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। अब लेट से आपके पास एक, यहाँ पे अगर आप देखें तो 45/64 की रीडिंग है, ठीक है ना, मींस कि आप 45/16 इस पे, ये क्या आ गया, मैयर करो। तो उसके लिए आप किस तरह मैयर करेंगे, उसके लिए आप इस तरह मैयर करेंगे कि 45/64, पहले तो ये स्केल 1/64 मिनिमम 1/64 ऑफ एन इंच मैयर कर सकता है। नाउ 45/64, so you can see this is first 8, 16, 24, 32, 40, तो अब 40 हो गया, अब 45 है यहाँ मेरे पास, ये 45 है, तो यहां तक 40 है 5 पे, 8 5 40, 1 2 3 4 5, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 45/64, ठीक है ना। नाउ अगर आपको इस तरह की रीडिंग चाहिए 2/2 45/64, ठीक है ना, तो वही तरीका है कि आप इसके साथ इंच ऐड कर लें, तो 2/2 45/64 कितना हो जाएगा, ये 40 था, 1 2 3 4 5, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का ये डिस्टेंस है, ये हो जाएगा 2 कितना 245/64। क्लियर? यस सर। अगर आपको पिछला 1/100 ऑफ एन इंच की समझ आई है तो ये एग्जैक्टली वही चीज है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने सिर्फ इसको 8 पे, क्यों नहीं लिख रहा है, 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे इसको भी 8 पे डिवाइड किया और इसको भी 8 पे डिवाइड किया, सिर्फ ये फर्क है, बाकी मेथड ऑफ ड्राइंग, मेथड ऑफ मेजरमेंट ये सारी एक ही तरीके से हैं, ठीक है ना। द सेकेंड एग्जाम्पल इज 145/64, तो ये देखिए ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये 45/64 है, और ये इस यहां से यहां तक 1 इंच है, तो इधर से लेके इधर तक का टोटल डिस्टेंस 145/64 है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सर ये 64 का समझ नहीं आएगा, आपने किस तरह बनाए? क्या 64 का, ये 45 का समझ आ गया सर, ये 64 सर आपने किस तरह बनाया? जिस तरह देखिए हमने वहां पे 1/100 किया था, ये कितने पार्ट्स थे, ये 10 में था और ये भी 10 में था, तो 10 10 100, तो वो जो पिछला स्केल है ये वाला ये 1/100 को मींस 0.64 तक मेजर कर सकता है, ठीक है ना। क्यों 10 हमने इसको इस पे डिवाइड किया था, 10 इसको। अच्छा मैं आपको ये यहाँ पे एक चीज बताना भूल गया हूं कि ये वाला जो ये है, ये वाला जो हॉरिजेंटल पे है, ये 1/10 ये वाली मेजरमेंट यहां पे लेते हैं, और जो 1/100 है मीन 0.01 वो वाली वैल्यू यहां पे लेते हैं। तो ये जो 0.6 था, 0.6 हमने कहां पे लिया, यहां पे लिया ना, और 0.4 ये यहां से लेके यहां तक का जो ये डिस्टेंस है, ये यहां से यहां तक का ये जो 0.64 है, और ये 1 और 2 पॉइंट मींस इस 2 को तो फिलहाल हटा दें, 0.64 की बात करते हैं। तो 0.64 हमारे पास 0.6 ये है और 4 हम ऊपर चले गए, क्योंकि 4 ऊपर क्यों जाते हैं, क्योंकि ये 1/100 वाले में आता है, तो हम 1 2 3 4 पे जाते हैं, तो 0.04, तो यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस 0.64 है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखें तो इसको भी 8 पे डिवाइड किया है, इसको भी 8 पे डिवाइड किया है, तो ये स्केल मेरे पास कितना मेजर कर सकता है, 1/64, ठीक है ना। तो यहां पे अब मेरे पास ये 40, ये आपको वैल्यू दी गई है कि इसको मेजर करें 45/64 मींस के इंच का 45वां हिस्सा, ये आपके पास इंच है टोटल, 0 से ले इस पॉइंट से लेकर यहां तक, ठीक है ना।
और इसको आपको कहा गया है कि 45/64 को मेजर करें। तो अब आपने कहा था, चूंकि आपने हर एक इसको 8 पे डिवाइड किया था ये नीचे इंच को, तो अब इसको 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56। अब मेरे पास ये रीडिंग है 45/64, तो 45 तो इधर यहाँ पे नहीं है, 40 है, तो 40, 41, 42, 43, 44, 45। तो इस पॉइंट से लेके स्टार्ट 0 पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस है दैट इज 45/64। आई होप इट इज क्लियर नाउ। Yes, sir. ये 245/64 है, ये 145/64 है, ठीक है ना। अब इसको आप जरा समझें, देखें कि ये रीडिंग सही इसने ली है कि नहीं। अगर आपको समझ आया तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर मैं आपको समझाता हूं। सारे देखो इसको। ठीक है सर। क्लियर? और बंदों को Yes. जिसको नहीं समझ आई तो पूछे मुझे, अगर नहीं आई तो मैं समझा देता हूं। आसान है सर। ठीक है, अच्छा देख लें फिर भी इसको। ये 2 को छोड़ दे फिलहाल। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट 27/64, ठीक है ना। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आपको इस तरह का स्केल बनाया दिया गया हो जिसमें ये नहीं लिखे होंगे ये चीजें, ठीक है ना, सिर्फ ये लिखे होंगे और ये, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्केल है कौन सा, 1/64 ऑफ एन इंच है या 1/100 ऑफ एन इंच है। तो वो आपको इन डिवीजन से पता चलेगा, हॉरिजॉन्टल पे और वर्टिकल पे। पहले तो आपको इन नंबरिंग से भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अब बात आती है कि आपको जो रीडिंग दी गई होती है उसको आपने समझना होता है कि आए ये रीडिंग हम इस स्केल पे प्लॉट कर सकते भी हैं कि नहीं। तो लेट्स से 27/64, ठीक है ना। तो आपको पता है ये 8 है, ये 16 है, ये 24 है, ये 32 है। अब 27 नहीं है, तो हम 24 के बाद 25, 26, 27, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का ये डिस्टेंस, ये कितना है, ये 25/64 है। तो इसके साथ एक और ऐड कर दो, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 127/64 हो जाएगा। लेकिन वी हैव बीन आस्क्ड टू प्लॉट 227/64, तो ये पॉइंट यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस है, ये 27/64 है, तो 2 इसके साथ इंच ऐड कर लें, तो इस पॉइंट और 24 यहां था ना, 25, 26, 27, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के दरमियान का जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज 227/64, ठीक है ना। यहां तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके वी विल टेक अ 10-minute ब्रेक्स, ठीक है ना। ब्रेक लेते हैं 10 मिनट, और उसके बाद जो है देन वी विल स्टार्ट अगेन एंड आई एम गोइंग टू शो दैट वी विल, चलें ब्रेक के बाद इसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है ना। Thank you. तो Okay, sir. 1 मिनट मेरी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं। ओके